Okay, thank You can start, ma'am. you. Thank you. Good afternoon, everyone. Welcome to the class of e-commerce. In the last class, we discussed that how we can have two different models. One was bricks and clicks model, where you indulge in the physical infrastructure and physical transactions, and at the same time you go for the online business as well. So that was the bricks and clicks model, made up of bricks and where you involve the clicks. Then we also discussed the pure online model, where everything is just online and you cannot find any offline store of that kind of company. We also discussed a pure offline place where only the physical showrooms and physical shops are available, and they do not do business over any online uh, marketplace or over any e-commerce channel. There were some advantages and disadvantages of both the channels. Today we will discuss that what are the types of e-marketplaces. Firstly, we will discuss the product online marketplace. So this term is segregated into three different terms. First is product, second is online, and the third one is the marketplace. So it is a marketplace where you are selling the product online. Okay, so here we are just dealing in the products, not the services. This type is what we typically call as an e-commerce marketplace where people buy and sell the products. So normally our e-marketplaces, e-commerce platforms are considered as product online marketplace. For example, we have Amazon, Myntra or Flipkart. Their products are being exchanged between the buyers and the sellers and through an online mode. The platform brings together all types of sellers into a one-stop shop that is convenient for consumers to not only check prices for the best deals, but do so all under one electronic roof. So now here we have given some advantages of product online marketplace. Here it allows you to switch between the platforms. That means if you are not satisfied with one product on one marketplace, then you can easily switch to another within a few seconds. For example, I have three applications in my mobile phone: Myntra, Flipkart, and Amazon. So if something is not available on Amazon, I can easily go to Flipkart or Myntra and check out the prices there. So there you can also compare the prices and you can purchase from one who is selling at the lowest price. So this is one benefit. Another benefit is that everything would be available under one roof. uh, Unlike other channels, for example, if I talk of Nike online marketplace, तो वहाँ पे सिर्फ आपको नाइकी के शूज मिलेंगे, नाइकी के और प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन प्रोडक्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आपको नाइकी के साथ साथ बाकी के सारे ब्रांड्स भी मिल जाएंगे, लाइक एडिडास, प्यूमा एंड अदर्स. So this is also one added benefit that you get everything over one platform under one roof. So this is product online marketplace. Next, online service marketplace. The online marketplace is no longer restricted to just selling the products. So not only the products are being sold, but here you can also offer services. For
example, we have Ola, Uber. They are not going to give you a car. वो कार सर्विस देते हैं आपको, कैब की सर्विस देते हैं. आप ओला पे जाके कार तो नहीं खरीद सकते या फिर कार के स्पेयर पार्ट्स तो नहीं खरीद सकते, but they provide you a service. So here we have written that the online marketplaces, they are not restricted just to the products, but they are also indulged in providing services. If I talk of Zomato, Zomato is a hybrid model. They offer you a product, but at the same time they are giving the delivery service as well. So जहाँ पर सिर्फ सर्विस इन्वॉल्व होती है उसको ऑनलाइन सर्विस मार्केट प्लेस कहा जाता है, जैसे कि ओला, उबर. एंड इफ यू वांट टू हैव a service, for example Urban Clap, they are also going to give you a service through the online marketplace. So that is how you can avail services through the online marketplaces. Then we have online rental marketplace. Here you are not purchasing something but getting something on the rent, and you are paying the price for a limited period. When it comes to online rental marketplace, the transportation and the fashion industry are popular among investors and aspiring entrepreneurs. That means here in the transport industry, we can see that we have many online rental marketplaces. For example, Zoom Car, you can rent a car there, or you can rent lehengas, sherwanis, etc. for your wedding. So mainly in the transportation and the fashion industry, this kind of marketplace is prevailing. However, in the past few years, the rental marketplace for the home appliances, electronic accessories, gas is not too far behind to become famous. तो इसमें होम अप्लायंसेस वगैरह भी, जैसे आप किसी शहर में जा रहे हैं 1 साल के लिए रहने, तो वहाँ पे आप रेंट पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, फर्नीचर ले सकते हैं 1 साल के लिए. तो अब इस तरीके की सर्विसेज भी मार्केट में आती जा रही हैं. Now we will discuss the hybrid model. Hybrid model in the e-commerce. There can be two types of hybrid online marketplaces. One category is where the people expect to sell and buy both the services and the products on the same time. जहाँ पर आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है साथ में और सर्विस भी मिल रही है. एक एग्जांपल मैंने आपको दिया जोमैटो का. जोमैटो की डिलीवरी सर्विस आपको मिल रही है और साथ में जो फूड डिलीवर हो रहा है वो प्रोडक्ट है. तो ये एक हाइब्रिड मॉडल है जहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों है. Another example given here is the Book My Show. Book My Show में आप क्या करते हैं कि टिकट्स ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, लेकिन जब उनके पास जाते हैं तो वो आपको टिकट हैंड ओवर कर देते हैं, यानी एक प्रोडक्ट आपको दे दिया जाता है साथ में. तो दिस इज ऑल्सो अ हाइब्रिड मॉडल जहाँ पर आप थोड़ा बहुत काम ऑफलाइन करते हैं, थोड़ा बहुत काम ऑनलाइन करते हैं. तो ये दो तरीके के हाइब्रिड मॉडल हो सकते हैं. एक जिसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों हो, एक जिसमें कुछ ऑनलाइन हो कुछ ऑफलाइन. Next, hyperlocal marketplace. The concept of hyperlocal came into the picture when people start to look for the nearby options while searching for the shops, restaurants, etc. आपने अपने सर्च इंजन पे जरूर कभी ना कभी सर्च किया होगा पेट्रोल पंप नियर मी, या फिर रेस्टोरेंट नियर मी, या फिर बार्बर शॉप नियर मी. So when you are using the internet to search out the shops and services nearby you is known as the hyperlocal marketplace.
which is also an example of hybrid model where you are using an online service, but ultimately you are going to be there at the shop, and through the offline mode you will be doing the transaction. In this marketplace model, the aim is to provide the facilities and the services within the shortest possible time for the local vendors. So यहाँ पर इसका क्या फायदा होता है कि जो आसपास के लोकल वेंडर्स होते हैं वो अपने आप को फीचर कर लेते हैं गूगल पे या इस तरीके की एप्लीकेशंस पे, जैसे justdial.com है, उससे उनकी रीच बढ़ जाती है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो उनका नेम आपकी सर्च लिस्ट में आ जाएगा और उनका रीच बढ़ जाएगा। सो दे वुड बी एबल टू रीच टू देयर ऑडियंस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। Now we'll be talking about the e-governance. What is e-governance? E-governance means when the government allows its people, its citizens, to avail many governmental services online. For example, if you want to apply for the PAN card or Aadhaar card, you can directly go to their website and apply for the same. So these are the services that are being provided by the government to its citizens, and they are purely online. Sometimes they deliver you the PAN card or the Aadhaar card offline as well. So here we have listed out some of the e-governmental services prevailing in India. First is e-Mandi. E-Mandi is basically there for the Kisans. They can have an access to the prices, how they can go for the different irrigation methods, how they can purchase different kind of seeds, etc. So e-Mandi is basically there for the vendors who want to sell their procured things into the market, the mandi. Next, land records. Land records are also being digitized now. So you just need to enter the area and other details, and you'll be getting to know that whose name is there for that particular land. Okay. Then we have school education mission mode project. We have different kind of projects listed out here. So you can just have a look over them. We have e-courts, ई-डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज़्यादा आजकल प्रिवेलिंग है, ई-डिस्ट्रिक्ट जिसमें आप नॉर्मल एसडीएम ऑफिस जाकर जो आपको सर्टिफिकेट्स अवेल करने होते थे वो सारे आप नॉर्मली अब कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप सबके लिए उस पर अप्लाई कर सकते हैं। We have Vikaspedia. It is just like the Wikipedia. For India, we have the Vikaspedia, where different initiatives of the government have been listed out, and you can just go to the Vikaspedia and ask a question, and you would be having answers, and it is also available in many regional languages. Now let me present my screen and I'll be giving you an overview of some of the e-governmental services. अपने लैपटॉप पे मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ कि ये कैसे काम करते हैं।
ये देखिए, पहले हम देखते हैं माई गवर्नमेंट। ये ई गवर्नमेंटल सर्विस है। ये देखिए, फ्रॉम 3rd to 25th March you can participate in मन की बात। सो गवर्नमेंट के थ्रू जितनी भी आपको सर्विसेज दी जा रही हैं, यहाँ पर उसका पूरा ओवरव्यू है। इसमें काफ़ी क्विज और कॉन्टेस्ट भी होते रहते हैं। डेटा भी है। Vaccinations done today, pledges taken, participation in the quiz, votes and polls, पद्मा अवार्ड क्विज है ये। अगर आप क्विज में किसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इफ यू वुड win this particular quiz then you will be given an award. Next है ओरिएंटेशन कोर्स ऑन पीयर मेडिटेशन। इस तरीके के कुछ कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट कराती है, तो आपको उसकी भी सारी नॉलेज यहाँ से मिल सकती है, और बाकी की इंफॉर्मेशन भी है। तो ये माई गवर्नमेंट, मेरी सरकार करके एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो प्योरली ई गवर्नेंस पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ विकासपीडिया। ये देखिए, here you have to select the language। अब ये देखिए लैंग्वेज भी कितनी सारी अवेलेबल है। हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सपोज मैंने हिंदी कर दिया है, ये देखिए खोज हो गया है। आई कैन राइट एनीथिंग हियर। ये देखिए ये सब कुछ हिंदी में आ गया है। सपोज मुझे अभी मैं दोबारा इंग्लिश पर जाती हूँ and I need to search about COVID। ये कुछ अभी गलत सर्च हो गया है। लैंग्वेज चूज की, अभी ये रीडायरेक्ट गलत हो रहा है तेलंगाना स्टेट मेडिकल प्लांट बोर्ड पे, जिसमें प्रॉब्लम आ रही है लैंडिंग पेज में। यहाँ पे इनकी वीडियो भी ऐसी ही एक सर्विस है ई डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए, ये देखिए आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। सपोज आपने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है ओबीसी SC ST का, या बर्थ सर्टिफिकेट है, कोई डेथ सर्टिफिकेट है, या फिर डोमिसाइल है, ये सारी एप्लीकेशन आप डायरेक्टली यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, विच वॉज नॉट अदरवाइज
पॉसिबल, अदरवाइज आपको वहाँ के चक्कर लगाने पड़ते थे SDM ऑफिस के, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ फिल करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। देखो, वेरीफाई योर सर्टिफिकेट, ट्रैक योर एप्लीकेशन, प्रिंट एंड डाउनलोड द सर्टिफिकेट. So these services are under the e-governmental services. Now let me go back to my PPT. Jeevan Praman, that is there for the birth certificate. E-hospital, आप कोई भी सर्विस के अकॉर्डिंग, किसी भी डिजीज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं इंटरनेट पे ही कि कौन से हॉस्पिटल में ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी. आप भी अपनी तरफ से कोई ऐसी सर्विस बता सकते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से है और आप उसको अवेल कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट पीपीटी पर आ जाते हैं. Okay, so next topic is what are the recent trends in e-business. आजकल e-business में जब से ये e-commerce आया है या e-business पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या क्या आजकल हमें ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं. रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, क्या क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ई-बिजनेस में. फर्स्ट है, ऑनलाइन सेल्स ग्रोथ इज अनस्टॉपेबल. यानी जो ऑनलाइन ग्रोथ हुई है, पहले कितने ऑनलाइन सेल होती थी और अब कितनी ऑनलाइन सेल होने लगी है. यू कैन जस्ट हैव अ लुक हियर कि it has raised from 1.3 trillion to 4.5 trillion in 2021. नेक्स्ट ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है, द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स आफ्टर COVID-19. It is going to rise after the COVID-19 because now more and more people are comfortable with e-commerce activities. Now we are confident enough कि ठीक है, अगर कोई चीज़ खराब आएगी तो उसको रिटर्न कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, रिफंड आ जाएगा. ई पेमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका रिफंड आपके दोबारा अकाउंट में आ जाएगा, या फिर पेमेंट में वैसे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं. सो इन सारी सर्विसेज की वजह से we have raised our confidence in e-commerce system, and that is why the e-commerce is going to rise after the COVID-19 manifolds. ट्रेंड हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मोबाइल शॉपिंग इज ग्रोइंग. ये सारा मैंने डेटा आपको ग्लोबल रिपोर्ट्स से निकाला है. So sales made via mobile devices increased by 15% since
2016, यानी 2016 के बाद एकदम से मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू सेल जो हो रही है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, और आजकल ज़्यादातर लोग मोबाइल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ई कॉमर्स के लिए रादर देन कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो स्मार्टफोन्स हैं वो ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी के साथ आने लगे हैं, उनका स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसीलिए हम न्यूमरस एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। इंटरनल मेमोरी बहुत अच्छी आने लगी है, पहले के मोबाइल्स में इतना नहीं होता था, ना ही इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो पाती थी और ना ही इतना स्पेस होता था। तो जब हमें चीज़ें खरीदनी होती थी तो हमें यूजुअली कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ता था या फिर लैपटॉप से करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, हर एक प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन आ गई है, उसको आप सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती है, इसीलिए मोबाइल शॉपिंग जो है वो ग्रो कर रही है। नेक्स्ट ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है? राइज ऑफ वॉइस कॉमर्स। वॉइस कॉमर्स क्या है? जैसे एलेक्सा, you just need to tell what you want and it would be presented on your screen. आपको सिर्फ बोलना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए। जैसे गूगल असिस्टेंट है, जैसे अमेज़न का एलेक्सा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टेना है, जैसे एप्पल का सिरी है, वैसे ही बाकी सारे डिवाइसेस भी अपने अपने वॉइस असिस्टेंट के साथ आ रहे हैं, जिसमें आपको चीज़ों को टाइप करने की भी नीड नहीं है, आप सिर्फ उसको बोलेंगे एंड रिजल्ट्स वुड बी अवेलेबल ऑन द स्क्रीन। जैसे मुझे अगर किसी को कॉल करना है तो मैं सीधा एलेक्सा को बोल सकती हूँ या गूगल असिस्टेंट को। नेक्स्ट, अगर मुझे कोई चीज़ सर्च करनी है, सपोज आई वांट टू नो दैट हाउ मेनी रेस्टोरेंट्स नियर मी आर प्रोवाइडिंग फ्री डिलीवरी, तो उसमें सीधा रेस्टोरेंट्स के नेम आ जाएंगे कि यहाँ से आपको फ्री डिलीवरी मिल सकती है। या हाउ मेनी रेस्टोरेंट्स आर ऑफरिंग गुलाब जामुन, तो वो सारे रेस्टोरेंट्स के नेम आ जाएंगे जहाँ पे गुलाब जामुन मिल सकता है। तो वॉइस कॉमर्स में भी बहुत तेजी आ रही है। नेक्स्ट है इवॉल्विंग रोल ऑफ सोशल मीडिया इन ई कॉमर्स। अब हमने कुछ पिछले सालों में ये देखा है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल हो गया है ई कॉमर्स में। अब ई कॉमर्स में कैसे सोशल मीडिया का हुआ, मैंने आपको ये एग्जांपल लास्ट की भी कुछ क्लासेस में दिया है कि जैसे ही आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट या किसी और ई कॉमर्स चैनल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो सारी एडवर्टीजमेंट्स आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी आ जाती हैं। इसका मतलब देयर मस्ट बी अ लिंकेज। उन्होंने पहचान लिया है कि आप किसी एक प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं और वही उसी तरीके की एडवर्टीजमेंट्स आपके सोशल मीडिया पे की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स और सोशल मीडिया आपस में बहुत अच्छे से जुड़ गया है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल टॉपिक्स इन्फ्लुएंस बायर्स, यानी पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि लोगों को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप एक दिन में इतनी सारी एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे, इंटरनेट पे, कि सबको याद रखना या सबको कंसिडर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे किस
तरीके से कंटेंट बनाया जाए, कंटेंट क्रिएट किया जाए, जिससे आप अट्रैक्ट कर सके कंज्यूमर्स को और आप उनके माइंड्स में अपनी एक इमेज बना सके। तो यहाँ पर एक तरीका निकाला गया कि जब हम उनको एनवायरमेंटल टॉपिक से रिलेट करेंगे कि इट हेल्प्स इन सस्टेनिंग द एनवायरनमेंट, या फिर किस तरीके से ये प्रोडक्ट पर्यावरण के लिए अच्छा है, या फिर पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, अगर हम अपने कंटेंट में ये दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं हम कस्टमर्स के माइंड पर एक अच्छी छाप छोड़ पाएंगे। इसीलिए many of the digital consumers have stated that environmental concerns impact their purchasing decision. For example, अगर मुझे कोई कहता है कि आप जूट बैग्स खरीदो, तो शायद नॉर्मली देखकर मैं ना खरीदूं, लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि ये बैग जो है वो रिसाइक्लेबल है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो मैं शायद उसको ज़्यादा प्रेफर करूंगी और उसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस देने के लिए भी तैयार हो जाऊंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स ने ये कहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है तो वो उनके परचेजिंग डिसीजन को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? जब कोई मशीनरी अपने आप ही इस तरीके के फॉर्मूलाज बना ले और आपको आपके सर्च करने से पहले ही उस तरीके के आंसर्स दे दे, वो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी सेंस करके आपकी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन करना। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए या कुछ भी चीज़ परचेज करने के लिए, तो क्या होता है कि वहाँ पर हमारा सारा डेटा फीड हो जाता है। जैसे मैंने अगर कुछ सर्च किया तो मशीनरी में फीड हो गया कि मैंने ये सर्च किया है। अब आज, कल, परसों, नेक्स्ट 1 वीक, 1 मंथ तक वही सब कुछ मुझे बार बार मेरी स्क्रीन पर आता रहेगा। ये एक तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दूसरा एग्जाम्पल है कि आप किसी एक तरीके का प्रोडक्ट जब खरीदते हैं अमेज़न पे, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स और आ जाते हैं, वो भी एक तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तीसरा एग्जाम्पल है जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड रिव्यूज आपको दिखाए जाते हैं, वो भी एक तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप अपनी फोटो अपलोड करके लेंस कार्ड के स्पेक्टिकल्स लगाकर देख सकते हैं, वो एक तरीके की ऑगमेंटेड रियलिटी है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, लेकिन वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है जिसमें डेटा को यूज़ करके फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट किया जाता है। यहाँ पर अब हम आ गए ऑगमेंटेड रियलिटी पे, जो मैंने अभी आपको बताया लेंस कार्ड। लेंस कार्ड अलाउज यू टू अपलोड योर पिक्चर एंड you can try many spectacles there. Augmented reality इसका दूसरा एग्जाम्पल है IKEA। अगर आप IKEA की एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, IKEA डील्स इन फर्नीचर, तो आपको अपने घर में जहाँ पे भी फर्नीचर रखना है वहाँ की फ़ोटो अगर आप अपलोड कर देते हैं
तो वहाँ पे अलग अलग फर्नीचर आप फोटो पे रख के देख सकते हैं. इट अलाउज यू टू ट्राई मेनी काइंड ऑफ फर्नीचर. तो ये भी एक तरीके की ऑगमेंटेड रियलिटी है. थर्ड एग्जाम्पल, नायका. नायका की एप्लीकेशन पर जाकर आप अपनी पिक्चर अपलोड करके डिफरेंट मेकअप थिंग्स अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपके फेस पर क्या सूट करेगा. सो आजकल ऑगमेंटेड रियलिटी का ज़माना है, क्योंकि लोग रियल में जाकर चीज़ों को नहीं ट्राई कर सकते. बाहर जाना कोविड में तो वैसे भी सेफ नहीं था, वैसे भी लोगों के पास इतना टाइम नहीं है. सो दे आर इंडल्ज्ड इन द ऑनलाइन शॉपिंग. अब ऑनलाइन शॉपिंग के एक्सपीरियंस को कैसे बेटर बनाया जाए, उनको ऐसे ही बेटर बनाया जा सकता है जब आप कोई ना कोई आपको इस तरीके से 3D इमेज या फिर कोई ऐसा तरीका दिया जाए जिससे आप उस चीज़ को घर बैठे ट्राई कर सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज जिसमें आप अपनी फ़ोटो अपलोड करके और चीज़ों को ट्राई करके देख सकते हैं कि वो आप पर कैसी लगेगी. नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन इज द फ्यूचर. पर्सनलाइजेशन का मतलब है कि जब आप अपने किसी भी ऑडियंस को टारगेट करें तो उसको उसके नाम से रेफर करें. आपने देखा होगा कि आप अगर किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो आपका नेम पूछा जाता है, और उसके बाद जब भी आपको कोई एडवर्टीजमेंट भेजी जाती है तो आपके नेम के बाद भेजी जाती है. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि दे जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस कि आप उनसे रिलेटेड हैं और वो आपको नाम से बुला रहे हैं, यानी ये स्कीम स्पेशली आपके लिए बनाई गई है. तो पर्सनलाइजेशन जो है वो भी हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करने में. नेक्स्ट ट्रेंड है विजुअल कॉमर्स इज ऑन द राइज. विजुअल कॉमर्स क्या है? इमेज रिकग्निशन मार्केट के बारे में आपने सुना होगा. सपोज आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपके फ्रेंड ने कोई कैमरा लिया और आपको वो अच्छा लगा, तो रादर देन आस्किंग द मॉडल नंबर, द कंपनी एटसेट्रा, यू कैन जस्ट क्लिक अ पिक्चर एंड यू कैन सर्च ऑन Amazon और वो आपको सेम पिक्चर उस तरीके का कैमरा दिखा देगा कि आप ये इतने में खरीद सकते हैं. सो इमेज रिकग्निशन मार्केट भी अब राइज पर है, जिसमें आपको सिर्फ चीज़ों को क्लिक करना होता है और सर्च करना होता है. पहले क्या होता था कि आपको टाइप करना पड़ता था. टाइप करने के बाद आया वॉइस कॉमर्स, जिसमें आपको बोलना पड़ता है सिर्फ, और उससे भी एक कदम आगे है विजुअल कॉमर्स. जैसे मैंने कोई पौधा देखा, अब मुझे उसका नाम नहीं पता, तो मैं सीधा उसकी फ़ोटो क्लिक करूँगी और गूगल पे जाऊँगी तो वो मुझे उसके रिजल्ट्स बता देगा कि इसका नाम ये है और ये वाला पौधा है. सो दैट इज़ हाउ द इमेज मार्केट इज़ ऑन द राइज. और ये मैंने इसमें सोर्सेज दिए हैं. स्टैटिस्टा से ये रिपोर्ट्स ली गई हैं और ओबेरलो से ये रिपोर्ट्स ली गई हैं. तो ये जो जितने भी ट्रेंड्स मैंने बताए हैं ये सारे फैक्ट्स हैं, और आपको पता होने चाहिए कि ई बिजनेस में आजकल कौन कौन से रीसेंट ट्रेंड्स होने हैं. अब मैं आपके चैट बॉक्स में देख पा रही हूँ कि कुछ बच्चों ने लिखा है कि इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द बुक दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द SOL. तो ये कुछ रीसेंट चीज़ें हैं जो अदरवाइज हमारे लिए पॉसिबल नहीं थी बुक्स में इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि ये हर साल चेंज होती हैं, लेकिन आपको क्लास में बताई जा रही हैं. सो यू कैन जस्ट रेफर टू माय PPT फॉर दिस टॉपिक फॉर रीसेंट ट्रेंड्स. आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए रीसेंट ट्रेंड्स बताए गए हैं. देखिए, माधव इज सेइंग कि इसमें प्रिवेसी इश्यूज आते हैं बिकॉज दे आर यूजिंग अवर डेटा. अगर आप याद
से हर एक चीज़ में लॉगिन करें तो लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपसे टिक कराया जाता है। वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन यही कहती हैं, कोई पढ़ता नहीं है, इसीलिए आपको लगता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे वो यही कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि दे वुड बी यूजिंग योर डेटा फॉर द नॉन पर्सनल यूज। ओके, तो अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते तो आपको उस पर टिक नहीं करना है, साइन अप नहीं करना है। पीपीटी मैं आपको भेज दूंगी। ग्रुप आपने अपना खुद कोई बना रखा है तो मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ योर ग्रुप एंड आई वुड नॉट बी, तो आप खुद ही देखिए ग्रुप का। तो यहाँ पे मैं पीपीटी का लिंक अभी आपको दोबारा दे दूंगी। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विंडोज अगर आपको दे रहा है तो वो सर्विसेज में आएगा, दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? डिजिटल मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जस्ट अ पार्ट जिसमें वो आपके डेटा को यूज करके आगे के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जस्ट अ पार्ट। yes, Google Lens is the visual commerce। 10 years आप ले सकते हैं, लेकिन उसके सिर्फ क्वेश्चन देखिए, आंसर उसके इतने रिलायबल नहीं होते, कई बार गलत आंसर्स भी हो सकते हैं, सो बी कॉशियस। पीपीटी अभी दे दूंगी, अभी यहीं पर लिंक दूंगी। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़ी हुई हूँ, कोई और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे है वो यहाँ से लिंक को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकता है। मैं सिर्फ आपको क्लास के अंदर ही पीपीटी का लिंक दे सकती हूँ। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है। ये है नेचर एंड डायनामिक्स, जैसे आपको हमने बताने हैं। सो वी विल डिस्कस व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस ऑनलाइन। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि जब हम इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब फर्स्ट प्रॉब्लम है ऑनलाइन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आपको कैसे पता चलेगा कि जो सामने कोई आपके प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहा है वो सच में आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं है? उसके लिए आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रखते हैं, और उस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, सपोज आपको IIM में ये देखना है कि MBA के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है,
तो वो सीधा आपको ब्रोशर कोर्स की तरफ नहीं लेके जाएंगे। पहले वो आपके बारे में पूछेंगे कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका नेम क्या है। उसके बाद वो ब्रोशर आपको आपके मेल पे भेजेंगे। तो ये उनका एक तरीका होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, कि कोई फेक आईडी से तो या कोई फेक बंदा तो नहीं है जो आपके बारे में सर्च कर रहा है, या कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। ओके, तो ऑनलाइन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इसलिए की जाती है कि जो बंदा इंटरेस्टेड होगा वही अपनी डिटेल्स देगा, और इससे उनको कम लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है और फेक लोगों को वो डिलीट कर पाते हैं, अवॉइड कर पाते हैं। ये एक इस तरीके का भी आइडेंटिटी चेक होता है, फेस आइडेंटिटी चेक, कि कोई रोबो तो नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स पे लॉगिन करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर करने पड़ते हैं, कोई कैप्चा एंटर करना पड़ता है, या फिर वो क्लिक करना पड़ता है कि इसमें जिसमें आपको बाइक दिख रही है, कार दिख रही है, उस पर क्लिक करना है। दे जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट अ रोबोट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कंपेटिटर एनालिसिस। कंपेटिटर एनालिसिस का मतलब है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे होते हैं और ऑनलाइन डील कर रहे होते हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम में आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं कंपेटिटर्स को लेके, क्योंकि कंपेटिटर्स के पास आपका डेटा अवेलेबल होता है और वो आपके डेटा पे इजीली एक्सेस कर पाते हैं, और आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो आपके तरीके के प्रोडक्ट बहुत इजीली ऑफर कर पाते हैं। तो ऐसे में कैसे या कंपेटिटर से आगे रहा जाए? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, वो फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, वो मिंत्रा पे भी अवेलेबल है, यानी बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। तो ऐसे कंपटीशन में कैसे आप सरवाइव करें, कैसे आप दूसरों से अलग दिखें, ये एक प्रॉब्लम आती है। क्योंकि नॉर्मल फिजिकल स्टोर्स में तो भाई बंदा 4-5 दुकानों पे मुश्किल ही जाता है, वो एक शॉप पे जाता है, खरीद लेता है, बार बार जाके कंपेयर नहीं करता। लेकिन ऑनलाइन में कंपैरिजन बहुत इजीली हो जाता है, इसीलिए कस्टमर्स एक प्लेटफॉर्म से दूसरे और दूसरे से तीसरे पे इजीली स्विच कर जाते हैं। तो इसीलिए इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लुक अपार्ट। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक हमने एग्जाम्पल दिया है, लेट्स टेक अ लुक एट ETSY, an e-commerce website that sells handmade और unique items। तो आप अपनी वेबसाइट पे, ई-कॉमर्स चैनल पे कुछ यूनिक आइटम्स दे सकते हैं जिससे आप दूसरों से अलग कहलाएंगे। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, ये देखिए। अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको हैंडमेड चीज़ें मिलती हैं। आपने इंडिया में भी देखा होगा, जैसे क्राफ्ट्स इंडिया करके एक वेबसाइट है, या हैंडलूम प्रोडक्ट्स मिलते हैं कहीं पर। तो इस तरीके से कुछ वेबसाइट्स अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करती हैं, और वो इंटरनेट या ऑनलाइन मार्केटिंग में और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों का इजी एक्सेस होता है डिफरेंट वेबसाइट्स। अब हम थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कस्टमर लॉयल्टी। मैंने वही आपको अभी जो चीज़ बताई है यहाँ पे दोबारा उसी को हम रीइटरेट करेंगे। Did you know that it can cost up to 5 times more to acquire a new customer than retaining an existing one? इसका मतलब एक नए कस्टमर को बनाने में 5 गुना ज़्यादा कॉस्ट लगती है, इसकी बजाय अगर आप एक एग्जिस्टिंग वन को ही रिटेन कर पाएँ तो वो बेटर है।
लेकिन अगेन इंटरनेट या ऑनलाइन मार्केटिंग में प्रॉब्लम आती है कस्टमर लॉयल्टी की। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मैं बाहर गई, 2 शॉपकीपर्स हैं। अब एक शॉप से मैं हमेशा से सामान लाती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं लॉयल रहूँगी और वहाँ से ही जाकर खरीदूँगी। तो ऑफलाइन स्टोर्स में कस्टमर की लॉयल्टी ज़्यादा होती है, बिकॉज एक पर्सनल रिलेशन होता है शॉपकीपर के साथ। लेकिन जब हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई लॉयल्टी नहीं होती। अब ऐसा थोड़ी है कि अमेजोन पे महंगी मिल रही है चीज़, फ्लिपकार्ट पे सस्ती मिल रही है, लेकिन आप अमेजोन से ही खरीदेंगे क्योंकि आप हमेशा अमेजोन से खरीदते हैं। नहीं, आप वहीं से लेंगे जहाँ पे आपको सस्ती चीज़ मिल रही है। इसका मतलब कस्टमर यहाँ पे लॉयल नहीं है, वो इजीली स्विच कर जाएगा अगर आप प्राइसेस कम नहीं रखेंगे। तो एक इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं? To maintain the customer loyalty, you must provide excellent customer service, create positive experience for your customers so that they can trust you. After all, if your customers are happy, it's likely that they'll purchase from you again. That means एक positive experience आप create कर सकते हो। जैसे सपोज अमेजोन पे भी वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, लेकिन मैं अमेजोन पे ही खरीदूंगी क्योंकि मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। सपोज फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ मंगाया था, रिटर्न में बहुत प्रॉब्लम आई, इसीलिए मैं अमेजोन पे जाऊंगी। अमेजोन चाहे महंगा भी दे रहा होगा, लेकिन उनकी सर्विसेज अच्छी हैं, वो रिटर्न भी जल्दी कर लेते हैं, वो एक्सचेंज भी जल्दी कर देते हैं, इसीलिए मैं अपनी लॉयल्टी अमेजोन के प्रति बना के रखूंगी। तो ये एक सोल्यूशन है कि आप एक बेटर एक्सपीरियंस दो अपने कस्टमर्स को, ताकि वो कहीं और से ना खरीदें। तो आज हम सिर्फ 3 ही प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, बाकी की प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेट मी कम बैक टू योर स्क्रीन, और अब लास्ट के 5 मिनट्स में आई विल टेक क्वेश्चंस। अच्छा, स्क्रीन विजिबल आपको नहीं थी, मैं दोबारा आपको स्क्रीन दिखा देती हूँ। ये हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं। पीपीटी आपको मैं अभी भेज ही देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ये प्रॉब्लम 1 डिस्कस की थी हमने, ये प्रॉब्लम 2 और ये प्रॉब्लम 3। हमने सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स को आज डिस्कस किया है। बुक आप ले लीजिए, मैंने डॉक्टर सुशीला मदान की बुक बताई है। पीडीएफ का लिंक मैं आपको दोबारा भेज रही हूँ।
आई एम पब्लिशिंग लिंक, कंट्रोल V, ये लीजिए, आपको मैंने लिंक भेजा है, एक बार ओपन करके देखो, इसमें अभी तक की सारी पीपीटीज हैं। देखो ओपन करके लिंक। मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर 2-3 दिन बाद अवेलेबल हो जाएंगे आपके डैशबोर्ड पे। वो थोड़ा टाइम लेते हैं अपलोड होने में। जल्दी से बताओ कि लिंक से ओपन हो रही है या नहीं हो रही है पीपीटी। Are you able to open it? ठीक है, there are 5 PPTs there in the link. You can download them, and if you want to share them on your WhatsApp group, you can. Okay, so see you in the next class. Then we'll do some website designing as well. So till then, bye bye, take care.